شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے یقین ہے جہاں بھی ہوں گے صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ ہنا، اور بچوں ہم پڑھ رہے ہیں ہفتم اردو کی کتاب میں سے۔ ہم نے شروع کرنا ہے آج سبق 6.3 جو کہ باب ششم کا آخری سبق ہے، باب ششم جس کا عنوان ہے انسانیت کا ادراک اور معاشرتی شعور۔ آج اس باب کا آخری سبق 6.3 ہم شروع کریں گے۔ اس کا پہلا لیکچر آج بچوں آپ کو پڑھایا جائے گا، اور سبق 6.3 کا عنوان ہے خدمت خلق۔ عنوان سے ہی ظاہر ہے خدمت خلق یعنی عام عوام کی یا مخلوقات کی، ہم اپنے جیسے انسانوں کی خدمت کرنا۔ ہمارے آج کے حاصلات تعلم زبان شناسی کی فہرست سے لیے گئے ہیں، جو کہ کل 3 ہیں۔ جو آج آپ کو 3 چیزیں سکھائی جائیں گی۔ پہلی ہے فعل ماضی کی اقسام کو پہچان کر استعمال کرنا، آج کے لیکچر میں آپ کو سکھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عبارت میں اسماء و ضمائر کی تذکیر و تانیث کی نشاندہی کر کے استعمال کر سکیں گے آپ، اور تذکیر و تانیث کے حوالے سے غلط فکرات کی درستی کرنا آج کے سبق میں آپ کو سکھایا جائے گا۔ ایک تو ہمارا سبق ہے فعل ماضی سے متعلق، اور دوسرا ہے اسماء اور ضمائر کی تذکیر و تانیث سے متعلق۔ 2 چیزیں سیکھیں گے، ایک تو ان کی نشاندہی کرنا، اور دوسرا ان کی غلطیوں کی شناخت کر کے درست کر کے لکھنا۔ لیکن اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک چھوٹی سی سرگرمی کرتے ہیں۔ یہ سوال درج ذیل جملے تذکیر و تانیث کے لحاظ سے غلط ہیں، ان کی درستی کریں۔ بچوں یہ گزشتہ اسباق میں سوال آپ کو کروایا گیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان جملوں میں آپ نے تذکیر و تانیث کی غلطی کی پہچان کرنی ہے اور ان کو درست کر کے لکھنا ہے۔ سوال آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، آپ جانتے ہیں آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے، لہٰذا یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سوال کو حل کریں۔ بہت خوب، اب بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف کہ آج کے سبق میں آپ کو کیا پڑھایا جائے گا۔ حاصلات تعلم میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آج کے سبق میں ہم سیکھنے والے ہیں، آپ کو سکھایا جائے گا فعل ماضی کی اقسام، ان کی پہچان اور استعمال کرنا۔ اور فعل ماضی کی اقسام کون کون سی ہیں؟ فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی بعید، فعل ماضی شکیہ، اور فعل ماضی شرطیہ یا تمنائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسماء کی تذکیر و تانیث، اسماء و ضمائر کی تذکیر و تانیث کی شناخت اور اغلاط کی پہچان کر کے جملے درست کرنا بھی آج کے لیکچر میں بچوں آپ سیکھنے والے ہیں۔ یہاں پر میں نے مختصر وضاحت لگائی ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں تذکیر و تانیث کی شناخت اور ان کو درست کر کے لکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ فعل ماضی کی اقسام کی شناخت اور ان کا استعمال گزشتہ اسباق میں آپ سیکھ چکے ہیں۔ دہرائی کے طور پر میں نے مختصر سی تفصیل اس لیکچر میں لگائی ہے تاکہ آپ کو وہ ساری باتیں یاد آ جائیں کہ آپ یہ سب کچھ سیکھ چکے ہیں۔ فعل ماضی کی اقسام باب سوم میں سبق 3.1 کے لیکچر 1 میں آپ کو پڑھائی جا چکی ہیں، اور آپ نے کیا پڑھا ہے اس لیکچر میں یہ ساری تفصیل یہاں پر موجود ہے۔ فعل ماضی کیا ہے؟ فعل ماضی زمانے کے لحاظ سے فعل کی ایک قسم ہے جسے فعل ماضی کہا جاتا ہے، اور فعل ماضی سے مراد ہے کسی کام کا کرنا ہونا یا پایا جانا گزرے ہوئے زمانے میں ظاہر ہو۔ مثالیں ہیں، کل بارش ہوئی تھی اس لیے آصفہ اسکول نہیں گئی، یہ اس کی مثالیں ہیں جو آپ سیکھ چکے ہیں۔ اب فعل ماضی کی اقسام کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی شکیہ، فعل ماضی شرطیہ یا تمنائی۔ یہ وہ ساری اقسام کی وضاحت اور تفصیل ہے جو بچوں آپ نے سیکھی ہے باب سوم کے سبق 3.1 کے لیکچر نمبر 1 میں یہاں تک، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اغلاط با لحاظ تذکیر و تانیث باب اول سبق 1.2 میں آپ کو پڑھایا جا چکا ہے۔ اغلاط با لحاظ تذکیر و تانیث کیا ہے؟ ہم بول چال میں اکثر تذکیر و تانیث کی غلطی کرتے ہیں، یعنی مذکر مؤنث کی ہم غلطی کر دیتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ اکثر ہم جملے ایسے بولتے ہیں جو مذکر کے ہوتے ہیں لیکن ہم الفاظ کون سے استعمال کر لیتے ہیں؟ مؤنث کے، اور مؤنث کے جملوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مذکر کے کو شامل کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے تذکیر و تانیث کی اغلاط۔ آپ کو آج کے سبق میں سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے جملوں میں ان کی شناخت کیسے کرنی ہے، اور اگر جملہ غلط ہے تو اس کو درست کر کے کیسے لکھنا ہے۔ بچوں یہ آپ نے سیکھا ہے، یہ جیسے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، یہ غلط ہے، پیٹ میں درد۔ چند کثیر الاستعمال جو غلطیاں ہیں وہ یہ ہیں، تمہارا ناک بہ رہا ہے۔ اچھا، اس میں جو درد ہے اسم مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے میرے پیٹ میں درد ہو نہیں رہی، میرے پیٹ
में दर्द हो रहा है। अब इसमें क्या गलती है? दर्द है लफ्ज मुजक्कर का जिसको मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह नाक इसम मुअन्नस है, जैसे नाक बह रही है, बह रहा नहीं है, नाक बह रही है। तो इसमें क्या गलती की गई है कि इसमें मुजक्कर को इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, अब गैर हकीकी तस्कीर तानीस ये भी आपको सिखाई गई है बाब दवम के सबक 2.1 में। गैर हकीकी तस्कीर तानीस क्या होती है? बेजान अस्मा में नर और मादा का कोई, अब बच्चों नर और मादा का फर्क जो है जानदार चीजों में होता है, इंसानों में होता है, जानवरों में होता है। जैसे कि अगर किसी औरत या लड़की या बच्ची की बात हो रही हो तो क्या कहा जाता है कि ये मुअन्नस है। मर्द लड़का बुजुर्ग मर्द की बात हो रही हो तो मुजक्कर का पता चल जाता है। इसी तरह जानवरों में भी मुजक्कर मुअन्नस है। लेकिन गैर हकीकी जैसे नाक है वो गैर हकीकी इसम है, ठीक है, यानी वो बेजान है, वो जानदार चीज तो नहीं, हम उसको कहते हैं नाक बहना, नाक बह रही है और उससे अभी दर्द हो रही है। तो दर्द जो है ऐसा इसम है, हम इस्तेमाल तो अपनी आम बोलचाल में करते हैं लेकिन दर्द जो है वो जानदार लफ्ज नहीं है, यानी उसको हम उसकी मुजक्कर और मुअन्नस कैसे हम उसके वाजे कर सकते हैं? हम उसके मुजक्कर और मुअन्नस वाजे करते हैं। इनकी तस्कीर व तानीस का तमाम तर दारोमदार अहले जुबान पर होता है। जैसे कलम को अहले जुबान मुजक्कर बोलते हैं। जैसे कलम की अगर बात की जाए, मैंने कलम, क्या लिखेंगे बच्चों? कलम खरीदा या खरीदी? यहां पर बताया गया है कलम को क्या कहते हैं? अहले जुबान मुजक्कर। तो मैंने कलम खरीदा, ये दुरुस्त है। आप ये नहीं लिखेंगे मैंने कलम खरीदी। अगर आप लिखेंगे या बोलेंगे मैंने कलम खरीदी तो वो कवायद की रूह से जुमला गलत हो जाएगा। अब गेंद मुअन्नस है, मैंने गेंद उछाली। अब इसको अगर हम लिख दें मैंने गेंद हवा में उछाला तो क्या होगा? ये जुमला गलत हो जाएगा। बल्कि इसको हम क्या करेंगे? ये गलत है, मैंने गेंद हवा में उछाली। ये है गैर हकीकी यानी बेजान इसम जिनको हमने तस्कीर तानीस के हवाले से पहचान करनी है। तो कैसे करेंगे? जो अहले जुबान ने इनके कायदे मुकर्रर कर रखे हैं उसी कायदों पर हम लोगों ने भी आम बोलचाल में इन अल्फाज को इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब हकीकी तस्कीर तानीस क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया हकीकी तस्कीर तानीस में कौन कौन से शामिल होते हैं? नर और मादा। और नर और मादा की पहचान किस में होती है? इंसानों और जानवरों में। सिर्फ इंसानों और जानवरों में हकीकी नर और मादा की हम पहचान कर सकते हैं। और गैर हकीकी में हम कैसे करेंगे? जो अहले जुबान ने कायदे मुकर्रर किए हुए हैं उसके मुताबिक ही हम उनकी पहचान करेंगे। अभी मैंने आपको बताया मादा मर्द औरत बैल गाय, ये जानवर, और ये इंसानों में। और जमायर इसम जमीर, और जमायर क्या है? इसम जमीर की जमा है। उर्दू में जमायर की तस्कीर तानीस का कोई फर्क नहीं। इसम जमीर क्या है? मैं, तुम, हम, उन, ये इसम ज़मीर की मिसालें हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसमें हम मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क नहीं करते क्योंकि मैं जो है इस मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है। हम मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। उन मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसलिए इसम ज़मीर यानी ज़मायर में तस्कीर व तानीस की शनाख्त करना मुश्किल है। जबकि हकीकी जो जानदार चीज़ें हैं, हकीकी अस्मा है, उसमें तो हम नर और मादा का फ़र्क कर लेते हैं लेकिन गैर हकीकी अस्मा और ज़मायर में हम फ़र्क नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना है? हमने अहले ज़ुबान के कवायद पर अमल करना है और उन्हीं के जो कायदे उन्होंने मुकर्रर किए हैं उन्हीं को आम बोलचाल में इस्तेमाल करना है। ये है वो गलतियाँ जो हम आम बोलचाल में तस्कीर व तानीस के हवाले से पहचान सकते हैं और उनका दुरुस्त इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों आप सीख चुके हैं और इस वक्त जो है हम बाब शिशम पर हैं, बाब शिशम के आखिरी सबक पर हैं, यानी आधी से ज़्यादा किताब मुकम्मल हो चुकी है और आप बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। आज के सबक में इन दोनों हासिलात ताल्लुम को मज़ीद बेहतर तौर पर आप कैसे सीखेंगे? सरगर्मियों के ज़रिए। देखते हैं आज की सरगर्मियाँ। वो काम जो आप खुद करेंगे। पहला काम क्या है कि दर्ज झेल जुमलों को तस्कीर व तानीस के हवाले से दुरुस्त करके लिखें। बच्चों ये वाला जो काम है ये हर बच्चा करेगा। आपने जुमले पढ़ने हैं, तस्कीर व तानीस के हवाले से देखना है कि इसमें क्या गलती है और फिर दुरुस्त करके लिखना है और मौलम को बताना है, उन्हें दिखाना है अपना काम। दूसरी जो सरगर्मी है
ग्रोहों में तकसीम होंगे और हर ग्रोह फेल माजी की एक एक किस्म के जुमले बनाएगा। अब यहाँ पर कितने ग्रोह बनेंगे? 6 ग्रोह। और हर ग्रोह क्या करेगा? इसम फेल माजी की एक एक किस्म को क्या करेगा? उसको तफीज की जाएगी। 6 ग्रोह होंगे और वो 6 ग्रोह फेल माजी की इकसाम के जुमले बनाएंगे। फेल माजी मुतलिक एक बन जाएगा, एक ग्रोह को फेल माजी मुतलिक दिया जाएगा, एक को फेल माजी इस्तेमारी दिया जाएगा, एक को दिया जाएगा फेल माजी शर्तिया, एक को दिया जाएगा फेल माजी शर्तिया या तमन्नाई, फेल माजी शकिया और फेल माजी बईद, फेल माजी करीब। ये 6 की 6 इकसाम हैं। यहाँ पर मैंने तस्वीर भी 6 लगाई हैं। 6 की माजी मुतलिक, माजी करीब, माजी बैद, माजी इस्तेमारी, माजी शकिया और माजी शर्तिया या तमन्नाई। ठीक है, ये 6 ग्रोह हो जाएंगे और हर ग्रोह क्या करेगा? एक एक किस्म को उसको उस एक एक किस्म का काम उसको तफीज किया जाएगा और वो उन पर जुमले बनाएगा। जुमले कमोबेश 3 से 4 आप बना सकते हैं और जैसे आप जुमले बना लें, आप अपने मौलम को अपना काम बताएं कि आपने मुकम्मल कर लिया है और उनको दिखाएं और उनसे अगर कहीं पर आपको रहनुमाई की ज़रूरत है तो इस सिलसिले में रहनुमाई भी लें। यहाँ पर वीडियो को रोके इनफरादी और ग्रोही दोनों सरगर्मियों को बहुत अच्छे तरीके से और नज़्म ज़ब्त के साथ जो है मुकम्मल कीजिएगा। बहुत खूब प्यारे बच्चों, आपने दोनों सरगर्मियाँ यानी दोनों का जो दोनों हासिलात तालीम से मुतल्लिक हैं, तज़कीर व तानीस और फेल माजी की इकसाम से मुतल्लिक, वो आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में किए हैं, दुरुस्त भी किए हैं और नज़्म ज़ब्त के साथ भी किए हैं। बढ़ते अपने सबक के दूसरे हिस्से में, जो कि है मश्क के सवालात, यानी वो काम कि आपने जो घर जाकर करना है और कॉपी पर हल करना है। बच्चों, हमारा पहला सवाल है, फेल माजी के इकसाम के जुमले आपके सामने हैं। हर किस्म से एक एक जुमला लिया गया है। आपने क्या करना है? आपने इनकी पहचान करनी है और एक नया जुमला बनाना है। यानी अव्वल तो सबसे पहले आपने लिखना है उसने छुट्टी ली। ये फेल माजी की कौन सी किस्म है? माजी मुतलिक है, माजी करीब है, बैद है, इस्तेमारी है, शर्तिया है, शकिया है, तमन्नाई है, कौन सी है? ठीक है, ये आपने उसके सामने लिखने के बाद आपने क्या करना है? उस किस्म का ही एक और जुमला बनाना है। फिर उसके बाद इबारत में तज़कीर व तानीस का ख्याल रखते हुए अस्मा और ज़मायर अलग अलग करने और उनकी जुमला साजी करनी। अब इसमें से आपने इबारत में से क्या करने? अस्मा और ज़मायर निकालने हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो इसम ज़मीर है उसकी तज़कीर व तानीस तो वाज़िया नहीं हो सकती। आप इसमें से कम अज़ कम जो है 10 इसम निकालेंगे, खत कशीद करेंगे और उनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन किस तरह इस्तेमाल करेंगे? तज़कीर व तानीस का ख्याल रखते हुए। उसके साथ साथ बच्चों, घर का एक और काम भी है। QR कोड में, यहाँ पर एक QR कोड दिया होगा। जुबान शनासी की जो मश्क है उसमें QR कोड मिलेगा आपको। वहां पर एक इबारत है यानी एक वर्कशीट है। आपने क्या करना है? उसमें से 7 अस्मा अलग करने का है और यूं जुमले बनाने के इनका मुज़क्कर या मुअन्नस होना वाज़िह हो जाए। QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे एक वर्कशीट आपको मिलेगी। उस वर्कशीट में ये काम सारा है कि आपने 7 इसम को खत कशीद करना है और तज़कीर व तानीस का ख्याल रखते हुए जुमला साजी करनी है। QR कोड की वर्कशीट डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, लेसन प्लान भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्कैन करने पर भी आपको वर्कशीट मिल जाएगी। इसके साथ साथ घर का एक और काम भी आपको दिया जाएगा। बच्चों, ये काम जो है आपकी ज़हानत का जायज़ा लेने के लिए आपको ये सवालात दिए जा रहे हैं। ये सवालात हैं, अल्फाज का तलफ़ुज़ अराब की मदद से आपने वाज़िया करना है और साब को लाकों की मदद से 3-3 मज़ीद अल्फाज आपने बनाने हैं। यानी आपने देखना है कि साब का कौन सा है, लाका कौन सा है। और ऊपर वाले सवाल में तलफ़ुज़ का ख्याल रखने यानी इफ़ादियत। अब आपने देखना है कि आवाज़ कौन सी निकल रही है, ज़ेर की निकल रही है, ज़बर की निकल रही है, पेश की निकल रही है। उसके हवाले से आपने क्या करना है? अराब लगाने हैं और इस दूसरे सवाल में आपने साबके और लाकों की मदद से 3-3 नए अल्फाज बनाने हैं। ये वाला जो काम है ये आपकी ज़हानत का जायज़ा लेने के लिए आपको ये सवालात दिए गए हैं। क्योंकि बच्चों, किताब तो हम मुकम्मल करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आप सीख भी चुके हैं, तो लिहाजा यहाँ पर ज़हन पर थोड़ा सा जोर डालिएगा। आपको ये काम करवाया गया है, लिहाजा आपको याद भी होगा और आपने क्या करना है? आपने घर जाकर इस काम को भी मुकम्मल करना है।
यहाँ पर मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करूँगी। आपको कैसा लगा आपका आज का लेक्चर, और उसमें कौन सी बात है जो आपको मुश्किल लगी, जिसकी मज़ीद वजाहत आप चाहते हैं कि इसको मज़ीद अच्छे तौर पर या और इसको वाज़े करके आपको बताया जाए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल मिलेंगे इस सबक के दूसरे लेक्चर में जो कि बुलंद ख्वानी पर मुश्तमिल है, यानी हम सबक की पढ़ाई करेंगे जो खिदमत खल्क से मुतल्लिक है, और देखेंगे पढ़ेंगे भी कि इसमें, और सीखेंगे भी कि खिदमत खल्क में मुसन्निफ ने, यानी सबक खिदमत खल्क में मुसन्निफ क्या बताना चाह रहे हैं, आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं। इजाज़त दीजिएगा, कल मिलेंगे, तब तक अपना क्या रखिएगा, बहुत सारा ख्याल भी रखिएगा। खुदा